جی شہرت کی محفلوں کا اہتمام کر رہی ہے اور ہماری بہن تسلیم کر رہی ہے جی ایسے سبھی بھائی کولڈ ڈرنک وہاں رکھی ہوئی ہے اور کولڈ ڈرنک پی کے سب داد دے رہے ہیں ماشاء اللہ. مجھے دیکھیے کہ شاعرانہ ذوق سے آراستہ پیراستہ شاعرانہ ذوق سے آراستہ پیراستہ منفرد انداز اور سب سے جدا ہے راستہ. شاعرانہ ذوق سے آراستہ پیراستہ منفرد انداز اور سب سے جدا ہے راستہ. میرے شعر دیکھیے کہ میں برابر میں کھڑا ہوں شعر تم کہتی رہو. پوری نظم ہے یہ تو شاعرانہ ذوق سے آراستہ پیراستہ اور سب سے جدا ہے راستہ. میں برابر میں کھڑا ہوں شعر تم کہتی رہو. ہر مخالف کی ادا کا روک دوں گا راستہ. ہر مخالف کی ادا کا روک دوں گا راستہ. چند اشعار اور کہ چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر کہ چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا. حیرت میں آگے میں کوئی تصویر ہو گیا. چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا. حیرت میں آ کے میں کوئی تصویر ہو گیا. اور جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام. جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام ہے. دل میں تیرے نام کی تصویر ہو گیا. چہرہ تیرا تو خواب کی تعبیر ہو گیا. حیرت میں آ کے میں کوئی تصویر ہو گیا. اور جا زندگی کے سارے ہنر تیرے نام ہے. دل میں تیرے نام کی تفسیر ہو گیا. اور تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی بکھرا ہوا تھا ٹوٹ کے تعمیر. تجھ سے ملا تو مجھ کو نئی زندگی بکھرا ہوا تھا ٹوٹ کے تعمیر ہو گیا. اور تو اس طرح ملی کہ میں حیران اس طرح ملی کہ میں حیران رہ گیا. دل کی کتاب کھول کے تحریر ہو. اس طرح ملی کہ میں حیران رہ گیا. دل کی کتاب کھول کے اشارہ آپ کی طرف بتا رہے ہیں نہیں ان کے چہرے پہ شرماہٹ ہے. فوٹو کھینچنے دو بھی شیر اور کہ اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا. دیکھیے اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا جبر کا موسم کم کب ہوگا. اور دنیا بھر کے سر کو جھکا کر اس کا سر بھی خم کب ہوگا. اس کی آنکھ میں نم کب ہوگا جبر کا موسم کم کب ہوگا. دنیا بھر کے سر کو جھکا کر اس کا سر بھی خم کب ہوگا. آج خوشیوں کے موسم آج خوشیوں کے موسم کی دور جہاں سے غم کب ہوگا. جاؤ شم کو ٹھوکر مارے. دیکھیے کہ جاؤ شم کو ٹھوکر مارا ہم میں اتنا دم کب ہوگا. جاؤ شم کو ٹھوکر مارے ہم میں اتنا دم کب ہوگا. بہت محبت نے کہا جو پہلی وجہ تھی تفسیر ہو گیا وہ تفسیر ہو گیا. سگیر بھائی آپ کی طرف سے ایک شعر بھابھی سبیا کے لیے. آپ کی غزل جو آپ نے سنائی تھی اس میں شعر آپ کی طرف سے بھابھی کے لیے. کندھا جبین وقت پہ اب تک ہے میرا نام. کندھا جبین وقت پہ اب تک ہے میرا نام. جب سے میں تیرے ہاتھ کی تحریر ہو
आपने जो कुछ कहा ना शुरू में, ये वही चीज है। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ प्रोफेसर रजिया सुभान साहिबा से 4 किताबें आपकी आ चुकी हैं। प्रोफेसर प्रिंसिपल मैं तो मेजबान मेहमान तो सभी हैं हमारे मेहमानों के अलावा। मेजबान भी माशाल्लाह। नहीं, जिस तरह से आप लोग मोहब्बत से बुलाते हैं तो सभी लोग यहाँ पे अपने आप को मेहमान एजाजी मेहमान खुशी समझते हैं। हकीकत तो ये है। पहले एक शेर, मैंने चाहा नहीं अमर होना, मैंने चाहा नहीं अमर होना, वरना किस्मत थी मेरी मुट्ठी में। मैंने चाहा नहीं अमर होना, वरना किस्मत थी मेरी मुट्ठी में। और एक है जो अभी सुबह हुआ, सर झुकाए हुए ये सोचती हूँ, सर झुकाए हुए ये सोचती हूँ, सर बुलंदी है किस कदर मुश्किल, सर झुकाए हुए ये सोचती हूँ, सर बुलंदी है किस कदर मुश्किल, रक्स करते हुए जब हद से गुजरना चाहा, रक्स करते हुए जब हद से गुजरना चाहा, तब हमें हल्के जंजीर रक्स करते हुए जब हद से गुजरना चाहा, तब हमें हल्के जंजीर का एहसास। अब तक किसी भी ख्वाब को सच्चा नहीं किया, अब तक किसी भी ख्वाब को सच्चा नहीं किया तुमने हमारे साथ, अब तक किसी भी ख्वाब को सच्चा नहीं किया तुमने हमारे साथ, ये अच्छा नहीं किया। ये और बात लोग तमाशाई बन गए, ये और बात लोग तमाशाई बन गए, हमने कभी भी खुद को तमाशा, हमने कभी भी खुद को तमाशा नहीं किया। ऐसी ही एक मुसाफिर नाकाम मैं भी हूँ, ऐसी ही एक मुसाफिर नाकाम मैं भी हूँ, तय जिसने अपना घर का भी रास्ता नहीं, तय जिसने अपना घर का भी रास्ता नहीं। ऐसे ही एक मुसाफिर नाकाम मैं भी हूँ, तय जिसने अपने घर का भी रास्ता नहीं किया। और है वो शेर और है, हफ्स है फिर भी खिड़कियां हैं बंद, हफ्स है फिर भी खिड़कियां हैं बंद, शायद उस घर में बेटियां हैं बंद, हफ्स है फिर भी खिड़कियां हैं बंद, शायद उस घर में बेटियां हैं बंद। ऐसा जिंदा है ये फसीले अना, ऐसा जिंदा है ये फसीले अना, इसमें हम सब की सिस्कियां हैं, इसमें हम सब की सिस्कियां हैं। ऐसा जिंदा है ये फसीले अना, इसमें हम सब की सिस्कियां हैं। ढूंढ भूली हुई किताबों, ढूंढ भूली हुई किताबों में उसमें कुछ जिंदा हस्तियां हैं, भूली हुई किताबों में उसमें कुछ जिंदा हस्तियां हैं। लड़कियां अब फिर भी खिड़कियां हैं बंद, शायद उस घर में बेटियां हैं। लड़कियां नहीं बेटियां हैं। यहाँ मौजूद होने की निशानी छोड़ जाऊं, यहाँ मौजूद होने की निशानी छोड़ जाऊंगी, अधूरी ही सही अपनी कहानी छोड़ जाऊंगी, अधूरी ही सही अपनी कहानी छोड़ जाऊंगी। ये सब अल्फाज जो इल्हाम की सूरत उतरते हैं, ये सब अल्फाज जो इल्हाम की सूरत उतरते हैं, मैं देकर उनको रंगे जावेदानी छोड़ जाऊंगी। ये सोचा है कि एक माँ हूँ तो बच्चों को विरासत में, ये सोचा है
एक माँ हूँ तो बच्चों को विरासत में गम अपने साथ लेकर शादमानी छोड़ ये सोचा है कि एक माँ हूँ तो बच्चों को विरासत में हम अपने साथ लेकर शादमानी छोड़ जाऊंगी, हम अपने साथ लेकर शादमानी छोड़ जाऊंगी। वो जिसमें सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, जिसमें सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। एक ऐसी राह कोई दरमियानी छोड़ जाऊं, एक ऐसी राह में सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, एक ऐसी राह कोई दरमियानी छोड़ जाऊंगी। ये शेर सुनिए। जमाना चाहे जितना भी तरक्की कर चले, जमाना चाहे जितना भी तरक्की कर चले, लेकिन मैं नस्ले नौ में एक नानी पुरानी। क्या कहने, जवाब नहीं। जमाना चाहे कितना भी तरक्की कर चले, लेकिन मैं नस्ले नौ में एक नानी पुरानी छोड़ जाऊंगी। दादी का जिक्र नहीं है। मेरी और आखिरी शेर है कि मेरी बेटी के पैकर में अगर मुमकिन हुआ रजिया, मेरी बेटी के पैकर में अगर मुमकिन हुआ रजिया, मैं हंसती गाती इतलाती जवानी। मेरी बेटी के पैकर में, मेरी बेटी के पैकर में अगर मुमकिन हुआ रजिया, मैं हंसती गाती इतलाती जवानी। यहाँ मौजूद होने की निशानी अधूरी ही सही है। बहुत शुक्रिया सुभान साहिबा। आप अगर कोई शेर सुनाना चाहें सदर मोहतरम। वो आपका चाचा मुफ्ती में मुतफिक सुना। हाँ, वो है कि मैंने चाहा नहीं अमर होना, वरना किस्मत की मेरी बेटी है। वरना किस्मत की मेरी बेटी है। आपने वही कहा, मैंने भी वही लिखा था। मैंने देखा नहीं लकीरों को, वरना वरना किस्मत की मेरी बेटी आज तो ये नया करना पड़ेगा जो बारिश का आलम है। मैं आप गुजार हूँ मेहमान एक खसूसी मोहतरमा मैं जबीन गजल अंसारी साहिबा ने। ये हमारी ऐसी मेहमान है कि ये आधा वक्त तो इंग्लैंड में रहती है और आधा से ज्यादा पाकिस्तान में रहती है, इसलिए हमें इन्हें पाकिस्तान की ज्यादा और जब जाती है तो अपनी खुशबू छोड़ जाती है। जी छोड़ जाती है। एक बात है, माशाल्लाह गजल साहिबा ने इंग्लैंड में भी एक बड़े अच्छे माहौल ये पाकिस्तान को नहीं भूलती है। पाकिस्तान में यहाँ पे शायरों का अवार्ड देना और उनका ख्याल रखना। नहीं, मेरी क्या औकात है, आप लोग तो बड़े लोग हैं, आपकी सरपरस्ती में जो हो सकता है इंग्लैंड से कायरो तक माशाल्लाह चलती रहती है ना। माशाल्लाह आप तो अच्छे काम कर रही हैं, नहीं आपकी मोहब्बत है। कायरो का आपने हवाला दे दिया तो ये बताती चलूं, शायद कुछ दोस्तों को नहीं बताओ कि कायरो जामे अल अज़हर में मैं पहली शायरा हूँ पाकिस्तानी जिसको उन्होंने बुलाया है और कुछ कलाम जो है वो सिलेबस में शामिल है। तो ये मैं इतना बताती नहीं थी, लेकिन अभी वो जियो वालों ने मुझे कहा कि ये आपको रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से सबके लिए ये आप सब का ही है, मेरा क्या होना है इसमें वतन पाकिस्तान का नाम। जी बहुत शुक्रिया। तस्लीम आपकी इजाजत, सदर साहब की इजाजत से अब ये मैं देखती हूँ कितने शेर लिखे लिखना शुरू करती है। देखिए मेहमान खुसूसी है उनके दो आप ये बात 20 साल पहले कहती तो मैं कई गज़लें लिखी, इसलिए तो मैंने कहीं मैंने वो सारे साल गुजारने के बाद फरमाइश की है। एक छोटी सी नज़म। ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है, ये जो तुम देख रहे हो मेरे चेहरे पे चमक फैली है,
حسن صورت تو نہیں ہے کوئی، حسن صورت تو نہیں ہے کوئی، روشنی یہ میرے افکار کی ہے، روشنی یہ میرے افکار کی ہے، ایک علامت یہ میری سوچ کی ہے، ایک نشانی میرے کردار کی ہے۔ اور غزل کے کچھ اشعار آپ میں سے کچھ نے سنا ہوگا لیکن آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، بہت اچھی بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں، بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں، اور کم سے کم اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، کم سے کم اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، راجا رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں، کم سے کم اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، راجا رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں، اور سن لے اے ہم کو تن آسان سمجھنے والے، سن لے اے ہم کو تن آسان سمجھنے والے، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہیں، سن لے اے ہم کو تن آسان سمجھنے والے، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہیں، اور ہم کے ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے، ہم کے ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے، آخر نقل مکانی سے نکل آئے ہیں، اور آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آنکھ جھپکی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں، آنکھ جھپکی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں، اور ہم جوانی پہ آ گئی، کینہ رکھ کر تو ملا کرتا تھا ہم سے اکثر، کینہ رکھ کر تو ملا کرتا تھا ہم سے اکثر، ہم تیری شعلہ بیانی سے نکل آئے، اور سن لے ہم کو تن آسان سمجھنے والے، ہم دبے پاؤں کہانی سے نکل آئے، ہم دبے پاؤں کہانی سے نکل آئے ہیں، بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے۔ باقی شعر میں بھول گئی، بڑھاپے کا تقاضا ہے، بار بار کہوں بار بار بتائیں آپ، ایک اور غزل کی کچھ اشعار، دل بہاروں کا طلبگار بنا دیتے ہیں، دل بہاروں کا طلبگار بنا دیتے ہیں، دشت کو ہم گل و گلزار بنا دیتے ہیں، دل بہاروں کا طلبگار بنا دیتے ہیں، دشت کو ہم گل گلزار بنا دیتے ہیں، اور تم تو ایک دل سے پریشان ہو تمہیں کیا معلوم، تم تو ایک دل سے پریشان ہو تمہیں کیا معلوم، ہم تو ویران چمنزار بنا دیتے ہیں، ہم تو ویران چمنزار بنا دیتے ہیں، اور میٹھے لفظوں میں ہوا کرتا ہے جادو کوئی، میٹھے لفظوں میں ہوا کرتا ہے جادو کوئی، دشمنوں کو بھی یہ دلدار بنا دیتے ہیں، ہم تیرے لطف و کرم کے تو ہیں قائل لیکن، ہم تیرے لطف و کرم کے تو ہیں قائل لیکن، تیرے تانے انہیں انگار بنا دیتے ہیں، اور مانگ کر دیکھ کبھی جاں بھی لٹا دیں تجھ پر، مانگ کر دیکھ کبھی جاں بھی لٹا دیں تجھ پر، ہم محبت کو بھی شاہکار بنا دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے گریزاں ہی رہو تم تو غزل، ایسے لوگوں سے گریزاں ہی رہو تم تو غزل، زندگی کو جو ایک آزار بنا دیتے ہیں، میٹھے لفظوں میں ہوا کرتا ہے جادو کوئی، دشمنوں کو بھی یہ دلدار بنا دیتے ہیں، اور الجھن اقرار کی ہے اور نہ انکار کی ہے، الجھن اقرار کی ہے اور نہ انکار کی ہے، اصل میں بات فقط جرأت اظہار کی ہے، اصل میں بات فقط جرأت اظہار کی ہے، اور باوضو نظروں سے دیکھا ہے عبادت کی طرح، باوضو نظروں سے دیکھا ہے عبادت کی طرح، کیسی شفاف نظر میرے طلبگار کی، کیسی شفاف نظر میرے طلبگار کی، اور زندگی امتحان میں گزری، زندگی امتحان میں گزری، درد کے سائبان میں گزری، زندگی امتحان میں گزری، درد کے سائبان میں گزری، جس کے دیوار و در شکستہ تھے عمر ایسے مکان میں گزری۔ ایک چھوٹی سی نظم سنا دوں اگر اجازت ہو، ویسے میں اپنا پورا کر چکی میں گھر میں کھاتا، فیصلہ ابھی کر لو،
फैसलों की जद में हूँ फासलों की हद में हूँ, फैसलों की जद में हूँ फासलों की हद में हूँ, इस फसील से आगे आग का समंदर है, इस फसील से आगे आग का समंदर है, फैसला कोई भी हो जाविया कोई भी हो फैसला वही होगा जिसमें फासले होंगे, हौसला हो चलने का गिर के गर संभलने का, हौसला हो चलने का गिर के फिर संभलने का, फिर कदम बढ़ाओ तुम मेरे साथ आओ तुम, फिर कदम बढ़ाओ तुम मेरे साथ आओ तुम, वो सफर ये लंबा है फिर भी कट ही जाएगा दर्द बढ़ ही जाएगा, वो सफर ये लंबा है फिर भी कट ही जाएगा दर्द बढ़ ही जाएगा, साथ है अगर चलना फासलों की हद में तुम फैसला आगे करो। अब तरन्नुम से 2 शेर सुना की इजाजत। जब से ये तय हुआ वो हमारा नहीं रहा, कुछ में उसके जाना गवारा नहीं रहा, जब से ये तय हुआ जो आँख मेहरबानी रही हम पे एक जो आँख मेहरबानी रही हम पे एक हम पे एक बदली है यूं के कोई इशारा नहीं में उसकी जान गवारा नहीं रहा, जब से तय हुआ जिंदा रहे तो पूछेंगे साहिल से जाके हम, जिंदा रहे तो पूछेंगे साहिल से जाके हम, साहिल से जाके हम, दरिया नहीं रहा के किनारा पूछे मैं उसके जान गवारा। बहुत अच्छी, बहुत आपने कुछ शेयर लिखा तो मैं एक मिसरा था उसके नहीं रहे वो हमारा नहीं रहा। तुम भी हमारे साथ जरा अजनबी से हो, हमको भी एतबार तुम्हारा नहीं रहा। छोड़ो मैंने खुद ही बता दिया, मेहनत मत करे। खुद पे जिस दौर में लिखते थे हजारों गज़लें जी, खुद पे जिस दौर में लिखते थे हजारों गज़लें, अब तो उस दौर जवानी से निकल आए। अच्छा लो भैया निकाल दिया पहले तो ये सदर साहब खुद को बचा बचा के शेर लिख रहे हैं। जब आप कितनी एहतियात से मैंने कहा है, तो मैं कहता लोग लिखते थे या हम लिखते थे, हमने कहा हम खुद लिखा करते नहीं आप सदर हैं तो आप जाहिर है आप उस्ताद हैं भाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैं दरखास्त करती हूँ तस्नीम आपकी साहिबा से, उनकी तख्लीकात हैं सहरा, आंखें और तन्हाई, तमाशा, मौत से माशाल्लाह से, मनकबत और नात का मजमुआ, चरागे बसीरत और विदाए हिज, 4 किताबें आपकी आ चुकी हैं, अमेरिका से तशरीफ लाई हैं और हमारे साथ रही। और बल्कि अभी 2-3 दिन पहले मैं कुछ चीज़ें पुरानी वो देख रहा था उसे ज़ाया करने के लिए, तो जंग में छपा हुआ एक जो समय पहले मेरे पर लिखा था नक्काश काज़मी ने, उसकी फोटोकॉपी मुझे मिली। वो अख्तर सईदी ने कहीं उनसे कहा था कि लिखे, और नक्काश काज़मी के बकौल कि एयरपोर्ट पे उसने मुझे पकड़ा और मैंने लिखा, उसके साथ इनकी एक नज़्म साथ में उस अखबार में छपी है। बस पुरानी बात बहुत ही से लिख रही हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी शायरात के लिए एक मोतबर नाम है, क्योंकि कुछ खराब हुए नाम लेकिन जिन्होंने संभाला हुआ है उनमें से ये है। बड़ी अच्छी बात है, और ये ऑन ईयर जाएगी अबू धाबी दुबई में मैं आपने कहा कि माशाल्लाह इन्होंने जो
काम किए हैं, जो खिदमत अंजाम दी अदब के हवाले से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो और अब ह्यूस्टन में अंजाम दे रही है माशाल्लाह। और अभी ये ह्यूस्टन में माशाल्लाह बहुत मैंने पाकिस्तान का नाम जहाँ भी जाती हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। सगीर जाफरी साहब से हमारा बहुत पुराना एक वास्ता, एक राब्ता, यूएई में जब रहते थे उस जमाने में इनको बाबाए तकरीबात कहा जाता था। बहुत सारे प्रोग्राम्स करते थे और बहुत सारा बुलाया करते थे, जिससे हम लोग अक्सर कतराते भी थे और कम जाते थे। लेकिन ये इसी इसी मुस्तकिल मिजाजी से बुलाते रहे और प्रोग्राम करते रहे। फिर जो कुछ अभी इन्हें सुनाया सबिया के हवाले से, तो हम सब उसके भी चश्मदीद गवाह हैं। जब पहली मर्तबा इन्हें ये सुनाया था सबिया को, तो एक बहुत अच्छा, हम लोग कहते थे यूएई में इजाफा हुआ सबिया के आने से। और उसके बाद सबिया जो शायरी में तो जो है वो है, एक उनका मकाम है, एक वो है फाल इस एतबार से बहुत है कि आज के दौर में जो मीडिया की ये जरूरत है और उर्दू मंजिल का जो काम कर रही है, मैंने बहुत पहले भी ये कहा था और अब फिर कह रही हूँ कि मजबूरन शायरों और अदीबों को नए टूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना पड़ेंगे, क्योंकि नया जमाना जो होता है अपने साथ साथ कुछ तब्दीलियां लाता है। और जो हम जैसे लोग हैं जो गोशा नशीन बहुत ज्यादा हैं, तो हमें भी मजबूरन आना पड़ा है अब इन फेसबुक वगैरह पे, जिसकी वजह से अच्छी बात हुई है कि एक दूसरे से राब्ता रहता है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबिया आपकी भी, आप और सगीर भाई आपका भी। इस वक्त खुशी हो रही है कि हमारे साथ बहुत सारी अच्छी शायरात मौजूद हैं जिनका मैंने कलाम सुना। रजिया साहिबा से पहली मर्तबा मिल रही हूँ, खुशी हो रही है क्योंकि रजिया और मेरी जो मुश्तरक बात है वो ये कि ये भी उर्दू तदरीस से वाबस्ता नहीं, और मैं भी अबू धाबी में मैं भी ये तदरीस से वाबस्ता रही, मतलब मैं भी उर्दू के हवाले से वहाँ पर पढ़ाती रही। हमारे साथ मुसद्दिक भाई मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनके दरमियान हम शेर पढ़ते हुए ना हमेशा ये महसूस करते रहे हैं कि अगर इनको शेर पसंद आ गया, इनको हमारी मिसरा साजी पसंद आ गई, तो यकीनन हमारा काम जो है वो बेहतर है। सहताब मौजूद है, वही उसकी पुरानी आज तक आदतें हैं जो हम कहा करते थे कि इतना कम ना पढ़ा करो। कुछ लोगों से कहते हैं कि ज्यादा ना पढ़ो, इससे हमेशा ये शिकायत रही कि इतना कम ना पढ़ा करो, और बहुत अच्छा कहता है। भारत सदर महफिल जिस तरीके से आज रागिब साहब की याद दिला रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि जिस तरह वो फिल बदी कहा करते थे। अच्छा है पुरानी बातों को कोई याद रखने वाला, याद दिलाने वाला मौजूद हो। सुहेल साहब चले गए शायद, हाँ, तो उनको देखते हुए मैंने सोचा था नज़्म सुनाऊंगी, लेकिन बहरहाल और लोगों ने भी नज़्म सुनाई है, तो ऐसा करते हैं कि चंद अशार में पहले सुना देती हूँ। कहाँ कहाँ रही ये अलग बात है, लेकिन मैंने तो अपने को हमेशा यही महसूस किया कि मैं यहीं रह रही हूँ। सही कह रही, क्योंकि ये जो एक कहते हैं ना कि जहाँ इंसान पैदा होता है, नाल गड़ी होती है ना, वो सांस वहीं लेता है। तो भारत चंद अशार इसी मुल्क, इसी वतन के हवाले से कि अंधेरी रात है, रोशन सितारे खो रहे हैं। अंधेरी रात है, रोशन सितारे खो रहे हैं, सफीना डूब न जाए किनारे खो रहे हैं। सफीना डूब न जाए किनारे खो रहे हैं, ये बस्ती गुमशुदा लोगों की बस्ती हो चुकी है। ये बस्ती गुमशुदा लोगों की बस्ती हो चुकी है, यहाँ तरतीब से सारे के सारे खो रहे हैं। यहाँ ये बस्ती गुमशुदा लोगों की बस्ती हो चुकी है, यहाँ तरतीब से सारे के सारे खो रहे हैं। यहाँ वहशत निगाही कर रही है रक़्स गिरिया, यहाँ वहशत निगाही कर रही है रक़्स गिरिया, नजर महवे खला है और नजारे खो रहे हैं। नजर महवे खला है और नजारे खो रहे हैं। और बहुत अफसोस है
बहुत अफसोस है समझौता तुमसे कर लिया है। ये लोग इधर चले गए, एक मिनट रुक जाए ताकि मजा आए मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी तरजीहात जो होती हैं वो बदल जाती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। बहुत अफसोस है समझौता तुमसे कर लिया है। बहुत अफसोस है समझौता तुमसे कर लिया है। सुखनवर चुप हैं और प्यारे हमारे खो रहे हैं। बहुत अफसोस है समझौता तुमसे कर लिया है। सुखनवर चुप हैं और प्यारे हमारे खो रहे हैं। खुदा के नाम पर फिर खेल खेला जा रहा है। खुदा के नाम पर फिर खेल खेला जा रहा है। पनाह में बंदगी वहशत के मारे खो रहे हैं। पनाह में बंदगी वहशत के मारे खो रहे हैं। मुझे लिखनी है रुदादे मोहब्बत कैसे लिखूं। मुझे लिखनी है रुदादे मोहब्बत कैसे लिखूं। गुलो खुशबू के सारे इस्तियारे खो रहे हैं। मुझे लिखनी है रुदादे मोहब्बत कैसे लिखूं। गुलो खुशबू के सारे इस्तियारे खो रहे हैं। और एक अभी बहुत अच्छा नज़्में लोगों ने सुनाई हैं, तो चंद नज़्में बहुत मुख्तसर लिखती हूँ। नज़्म जब लिखती हूँ रज़िया आपके मतले की नज़्म बहुत खूबसूरत होता है। उस उन्वान है रक़्स फुसूम। रक़्स फुसूम। मैं जो मशरिक़ के शबिस्तानों में मसरूफ़ हुई, मैं जो मशरिक़ के शबिस्तानों में मसरूफ़ हुई, मैं जो मैखाने मगरिब से भी मंसूब हुई। पहले तक़दीस के नामों पे मेरा सौदा हुआ। पहले तक़दीस के नामों पे मेरा सौदा हुआ। अपनी हुर्मत का मैं तावान अदा करती रही। अपनी हुर्मत का मैं तावान अदा करती रही। अब भी बाज़ारे तसर्रुफ में बहुत सस्ती हूँ। अब भी बाज़ारे तसर्रुफ में बहुत सस्ती हूँ। अब भी बिकती हूँ तो कीमत भी मुझे मिलती नहीं। अब भी बिकती हूँ तो कीमत भी मुझे मिलती नहीं। मैं वो बाज़ारे ज़रूरत की हूँ जिनसे मतलूब। मैं वो बाज़ारे ज़रूरत की हूँ जिनसे मतलूब। हब से बेजा में जिसे रखता है उसका महबूब। हब से बेजा में जिसे रखता है उसका महबूब। जिस्म ही जिस्म बनाई गई तस्वीर मेरी। जिस्म ही जिस्म बनाई गई तस्वीर मेरी। ख्वाब दर ख्वाब ही लिखी गई ताबीर मेरी। हल्का दर हल्का बदलती रही जंजीर मेरी। एक खराबे में ही होती रही तामीर मेरी। जिस्म ही जिस्म बनाई गई तस्वीर मेरी। ख्वाब दर ख्वाब ही लिखी गई ताबीर मेरी। हल्का दर हल्का बदलती रही जंजीर मेरी। एक खराबे में ही होती रही तामीर मेरी। दायरा वार मेरा रक़्स फसूं जारी है। दायरा वार मेरा रक़्स फसूं जारी है। रद्द तश्कील व तमन्नाए हज़ी तारी है। दायरा वार मेरा रक़्स फसूं जारी है। रद्द तश्कील व तमन्नाए हज़ी तारी। एक नज़्म सुना के फिर गजल एक आध गजल सुना दूंगी। नज़्म का नाम है फिशारे आगही। फिशारे आगही नज़्म का नाम है कि मुझे सोना है लेकिन रोशनी सीने के अंदर जल रही है जो मुझे सोने नहीं देती। मुझे सोना है लेकिन रोशनी सीने के अंदर जल रही है जो मुझे सोने नहीं देती। तलाशी रायगा में इल्तिजा करती हुई धड़कन। तलाशी रायगा में इल्तिजा करती हुई धड़कन। निदामत की घड़ी की सुइयों से गूंजती टक टक की आवाजें। निदामत की घड़ी की सुइयों से गूंजती टक टक की आवाजें।
मैं सोना चाहती हूँ और घड़ी की सुइयां सोने लगी। सरापा दाखिलियत और दुरूने जात में एक धुंध छाई है। सरापा दाखिलियत और दुरूने जात में एक धुंध छाई है। कोई वाज़े इबारत तब तलक मैं पढ़ नहीं पाई। अजबी बेयकीनी की लकीरें मतले अफकार पर अक्सर उभरती हैं कि जिनको पढ़ने की कोशिश में लुकनत आ गई मेरी बसारत में। कि जिनको पढ़ने की कोशिश में लुकनत आ गई मेरी बसारत में, मुझे सोना है और लुकनत ज़दा लहजा मुझे सोने नहीं देता। मुझे सोना है और लुकनत ज़दा लहजा मुझे सोने नहीं देता। कोई गुल कर दे आकर रोशनी और मतले अफकार से सारी लकीरों को मिटा। अज़ाबे खुद शनासी से कोई आकर बचा ले, मुझे विजदान की इस कैद से आकर छुड़ा ले कि मैं भी बेखुदी से बेनियाजाना गुजर जाऊं। गजल के शाद अशार बस सुनाकर फिर इजाजत चाहूंगी कि तमाम गजल की इजाजत दीजिए। तमाम उम्र रवा का माल हैरत है। तमाम उम्र रवा का माल हैरत है। जवाब जिसका नहीं वो सवाल हैरत है। जवाब जिसका नहीं वो सवाल हैरत है। दुकाने चश्म यहाँ बेमिसाल हैरत है। दुकाने चश्म यहाँ बेमिसाल हैरत है। इस आईने का सरासर कमाल हैरत है। दुकाने चश्म यहाँ बेमिसाल हैरत है। इस आईने का सरासर कमाल हैरत है। ये जिंदगी तो तेरे साथ साथ खत्म हुई। ये जिंदगी तो तेरे साथ साथ खत्म हुई। जो मुझ में बाकी है वो लाजवाल हैरत है। जो मुझ में बाकी है वो लाजवाल है। वो ख्वाब ऐसे थे ताबीर उनकी थी ही नहीं। वो ख्वाब ऐसे थे ताबीर उनकी थी ही नहीं। रमीदा हिजर गुरेजा विसाल हैरत है। और कोई तिलिस्म ज़दा जब ये आईने ने कहा, कोई तिलिस्म ज़दा जब ये आईने ने कहा, यहाँ तो सारे का सारा जमाल हैरत है। यहाँ तो सारे का सारा जमाल हैरत है। हुई तिलिस्म ज़दा जब ये आईने ने कहा, यहाँ तो सारे का सारा जमाल हैरत है। अदम वजूद अदम उफ़ी सिलसिले कैसे, अदम वजूद अदम उफ़ी सिलसिले कैसे। मैं लुट गई हूँ मगर माला माल हैरत है। अदम वजूद अदम उफ़ी सिलसिले कैसे। मैं लुट गई हूँ मगर माला माल हैरत है। ये कायनात है हैरान अपने होने पर। ये कायनात है हैरान अपने होने पर। कदम कदम पे यहाँ महवे हाल हैरत है। कदम कदम पे यहाँ महवे हाल हैरत है। और एक और गजल की इजाजत चाहूंगी। बिल्कुल मुख्तलिफ विस्तार है और उसकी एक मुसलसल आपको लगेगी कि सुकूते असर में गूंजी हुई अजान हूँ मैं। सुकूते असर में गूंजी हुई अजान हूँ मैं। बहुत से कुर्सी नशीनों के दरमियान हूँ मैं। बहुत से कुर्सी नशीनों के दरमियान हूँ मैं। अदब की करबो बला कूफे सदा है गवाह। अदब की करबो बला कूफे सदा है गवाह। हवाए शाम का लिखा हुआ बयान हूँ मैं। हवाए शाम का लिखा हुआ बयान हूँ मैं। वो खेमा गाहे मोहब्बत तो जल गई कब की। वो खेमा गाहे मोहब्बत तो जल गई कब की। और उसकी राख में बरसों से नीम जान हूँ मैं। और उसकी राख में बरसों से नीम जान हूँ मैं।
फुरात तशनगी शौक रूबरू तेरे, फुरात तशनगी शौक रूबरू तेरे, जिसे जलाया गया था वही मकान हूँ मैं। फुरात तशनगी शौक रूबरू तेरे, जिसे जलाया गया था वही मकान हूँ मैं। वो टूटा लहजा वो बेचादरी वो शाम अलम, वो टूटा लहजा वो बेचादरी वो शाम अलम, कभी जो खत्म ना होगी वो दास्तान हूँ मैं। कभी जो खत्म ना होगी वो दास्तान हूँ मैं। गुलूए तश्न लबी देख किस सलीके से, गुलूए तश्न लबी देख किस सलीके से, कशीदा तीर संभाले हुए कमान हूँ मैं। गुलूए तश्न लबी देख किस सलीके से, कशीदा तीर संभाले हुए कमान हूँ मैं। और शेर देखें कि शरीयते दिलो दुनिया उठाए फिरती रही, शरीयते दिलो दुनिया उठाए फिरती रही, वो कह रहा है मगर फिर भी नातवान हूँ मैं। शरीयते दिलो दुनिया उठाए फिरती रही, वो कह रहा है मगर फिर भी नातवान हूँ मैं। ये बामोदर को सजाया गया है मेरे लिए, ये बामोदर को सजाया गया है मेरे लिए, नज़ारगी तेरी खातिर लहू लहान, बहुत अच्छे, नज़ारगी तेरी खातिर लहू लहान हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत अच्छा क्लास, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, ये इम्तिहान में होने वाला है। आपका इन्होंने बड़ा अच्छे तस्करा किया था आपका, और ये हमारे साहब बैठे हुए हैं बहुत देर तक, और दो शेर इत्तेफाक से ये हो गए। जो पहले आपने हैदर वाला जो कहा है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। न जाने क्यों मिला शिकनों से पुर मुझे चेहरा, न जाने क्यों मिला शिकनों से पुर मुझे चेहरा, कि मेरे बख्त के शीशे में बाल है, और जो अभी आपने पढ़ी, मुझे तो कल तलक तूने ही एतमाद दिया, मुझे तो कल तलक तूने ही एतमाद दिया, मुझे ना इस तरह ठुकरा कि तेरा मान है, मुझे तरह ठुकरा कि तेरा मान है। आप जी साहब आप ले आए तशरीफ। अब मैं बिल्कुल बैठ जाती हूँ। अब तीसरे मेहमान खुसूसी हमारे यूएई से ही ताल्लुक, और बहुत अरसा वहाँ पे हम साथ रहे, मुसद्दक लखानी साहब। इनकी किताब जो शाया हुई है वो है नवाए बेनवा, बहुत मशहूर इनका शेर है। रस्सी पे चल रहा था तवाजुन बचा के मैं, रस्सी पे चल रहा था तवाजुन बचा के मैं, पिछले कदम पे खुश था तो अगले का डर भी था। बहुत ही अच्छे शायर, बहुत बड़े शायर मुसद्दक लखानी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं urdumanzil.com सगीर भाई और सबिया साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है आप सब हजरात से, ख़वातीन से मिलकर, और ये बात भी वैसे है कि अक्सर ख़वातीन से मैं पहली मरतबा मिल रहा हूँ। तो एक मरतबा मैंने, और वो ज़िंदगी का पहला और आखिरी तजुर्बा अब तक का है, मैंने एक मुशायरे में शिरकत की थी, और वो मुशायरा एक खातून की सदारत में था। तो वो मेरा पहले ही, और वो खातून तस्नीम आती थी। और आज मैं ख़वातीन की अक्सरियत, ये आपके साथ गुस्ताखी हुई। तो बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई, और जैसे कि तस्नीम आबदी साहिबा ने भी कहा, और मेरा भी यही हाल है कि मैं, ये बात सही है कि पिछले 40 साल से बाहर हूँ, लेकिन अव्वल व आखिर हवाला मेरा कराची है। तो मैं कराची ही को अपना वतन और अपना घर समझता हूँ। तो
ایک مطلع اور 2-3 شعر، اس کے بعد ایک غزل میں پیش کروں گا. جناب صدر کی اجازت. بالآخر انقلاب آنے لگے ہیں، بالآخر انقلاب آنے لگے ہیں. یہ ذرا آنے جانے کا سلسلہ علی سے جعفری آنے لگے ہیں. جعفری صاحب مطلب پیش کر رہا ہوں. بالآخر انقلاب آنے لگے ہیں، بالآخر انقلاب آنے لگے ہیں، سوالوں کے جواب آنے لگے ہیں. بالآخر انقلاب آنے لگے ہیں، سوالوں کے جواب آنے لگے ہیں. بلائیں کیوں اترتی آسمان سے، بلائیں کیوں اترتی آسمان سے، زمینوں سے عذاب آنے لگے. بلائیں کیوں اترتی آسمان سے، بلائیں کیوں اترتی آسمان سے، زمینوں سے عذاب آنے لگے ہیں. اور ابھی تعبیر کے قصے نہ چھیڑو، ابھی تعبیر کے قصے نہ چھیڑو، بڑی مشکل سے خواب آنے لگے. ابھی تعبیر کے قصے نہ چھیڑو، بڑی مشکل سے خواب آنے لگے ہیں. اگر ہاتھوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اگر ہاتھوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں تو مطلب ہے گلاب آنے. اگر ہاتھوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں تو مطلب ہے گلاب آنے لگے ہیں. اور سلسلے کا آخری شعر کہ مصدق پوچھ ڈالو اپنی پلکیں، مصدق پوچھ ڈالو اپنی پلکیں، مناظر زیر آب آنے لگے ہیں. مصدق پوچھ ڈالو مناظر زیر آب. اور غزل پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش خدمت ہے. جل جاتے دونوں ہاتھ جلاتے اگر چراغ، جل جاتے دونوں ہاتھ جلاتے اگر چراغ، اس خوف سے بجھے ہی رہے رات بھر چراغ. جل جاتے دونوں ہاتھ جلاتے اگر چراغ، اس خوف سے بجھے ہی رہے رات بھر چراغ. ننھی سی لو بڑھی تو دیے سے دیا جلا، ننھی سی لو بڑھی تو دیے سے دیا جلا. کس خوش دلی سے ہوتے ہیں محو سفر چراغ، کس خوش دلی سے ہوتے ہیں محو سفر چراغ. اور پھوکوں سے بار بار بجھانے کے باوجود، پھوکوں سے بار بار بجھانے کے باوجود، دونوں سلگ رہے ہیں ادھر دل ادھر تھوکوں سے بار بار جلا بجھانے کے باوجود، دونوں سلگ رہے ہیں ادھر دل ادھر چراغ. یہ فیصلہ ہے اب کبھی سورج نہ لیں گے ہم، یہ فیصلہ ہے اب کبھی سورج نہ لیں گے ہم. یہ طے ہوا ہے آج سے اپنی سحر چراغ، یہ طے ہوا ہے آج سے اپنی سحر چراغ. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آتا نہیں یقین تو آنکھوں سے پوچھ لو، آتا نہیں یقین تو آنکھوں سے پوچھ لو، پانی میں رہ کے ہوتے نہیں بے اثر. آتا نہیں یقین تو آنکھوں سے پوچھ لو، پانی میں رہ کے ہوتے نہیں بے اثر. پانی میں رہ کے ہوتے نہیں بے اثر. اور ان سب خاموشیوں ہی کو کہتے ہیں انتظار، ان سب خاموشیوں ہی کو کہتے ہیں انتظار. آنکھوں میں عکس دل میں تڑپ طاق پر چراغ، ان سب خاموشیوں ہی کو کہتے ہیں انتظار. آنکھوں میں عکس دل میں تڑپ
ताक पर चराग, और जैसा उजाला चाहिए वैसा नहीं मिला। जैसा उजाला चाहिए वैसा नहीं मिला। यूं तो बहुत मिलेंगे मुसद्दिक के घर चराग, यूं तो बहुत मिलेंगे मुसद्दिक के घर चराग, जल जाते दोनों हाथ जलाते अगर चराग, इस खौफ से बुझे ही रहे रात भर चराग। एक और पेश करता हूँ। किसी का ड्राइवर आया, देखिए किसका ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ, किसी से पूछा खातून का नाम नहीं बताया, शायद मेरा बाहर जा रहे हैं तो उससे नाम जी जी अच्छा खातून का है। बहुत तहजीब वाला ड्राइवर है वो। खातून को लाया। जी मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। रद जो करता था भरी बज़्म में दावा मेरा, रद जो करता था भरी बज़्म में दावा मेरा, चुपके चुपके वो तरफदार रहा था मेरा, चुपके चुपके वो तरफदार रहा था मेरा। चुपके चुपके वो तरफदार मेरा है। अच्छा वो खातून इसलिए कहा है कि वो मेरी बीवी ने भेजा। रद जो करता था भरी बज़्म में दावा मेरा, चुपके चुपके वो तरफदार रहा था मेरा। क्या कहूँ अपनी फसीलों से मैं कैसे निकला, क्या कहूँ अपनी फसीलों से मैं कैसे निकला। मेरे अतराफ बड़ा सख्त था पहरा मेरा, क्या कहूँ अपनी फसीलों से मैं कैसे निकला, क्या कहूँ अपनी फसीलों से मैं कैसे निकला। मेरे अतराफ बड़ा सख्त था पहरा मेरा। आंधियां ढूंढने निकली हैं खुदा खैर करे, आंधियां ढूंढने निकली हैं खुदा खैर करे। वक्त की रेत पे लिखा है फसाना मेरा, वक्त की रेत पे लिखा है फसाना मेरा। वक्त की रेत पे लिखा है फसाना मेरा। और ये शेर वाला ने फरमाया कि जिंदगी भर तो किया रक्स तेरे कहने पर, जिंदगी भर तो किया रक्स तेरे कहने पर। अब तो मत कर सरे अफलाक तमाशा, जिंदगी भर तो किया रक्स तेरे कहने पर। अब तो मत कर सरे अफलाक तमाशा मेरा, अब तो मत कर सरे अफलाक तमाशा मेरा। मैं खताकार हूँ लेकिन मुझे बागी न समझ, मैं खताकार हूँ लेकिन मुझे बागी न समझ। देख सांसों के मुसल्ले पे सजदा, मैं खताकार हूँ लेकिन मुझे बागी न समझ। देख सांसों के मुसल्ले पे सजदा, एक बेचैन नजर उसमें शराबों का गुबार, एक बेचैन नजर उसमें शराबों का गुबार। क्या था मंजर में बता इसके अलावा मेरा, क्या था मंजर में बता इसके अलावा मेरा। और काम कुछ अहदे जवानी के अभी बाकी है, काम कुछ अहदे जवानी के अभी बाकी है। और दहलीज पे बैठा है बुढ़ापा, जवानी के अभी बाकी है, काम कुछ अहदे जवानी के अभी बाकी है। और दहलीज पे बैठा है बुढ़ापा मेरा। अब्र छटते ही मुसद्दिक ये ख्याल आया है,
अब्र छटते ही मुसद्दिक ये ख्याल आया है, धूप की मौज में बह जाए न साया, धूप की मौज में बह जाए न साया मेरा। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक लाखानी साहब, बहुत खूबसूरत शायरी सुना रहे थे। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ, अब तो सदर मोहतरम मिल जाएंगे, ये क्या शेर सुनाएंगे पहले आपका ना मुसद्दिक लाखानी साहब से। नजर चिराग, आपकी नजर जी। उसने भी अपने रुख को छुपाया नकाब से, उसने भी अपने रुख को छुपाया नकाब से, हमने तो गुल किया ही था वक्ते सहर चिराग। वक्ते सहर चिराग। अब आपकी बारी है। फिर बाकी खुसरो साहब, इनकी 8 किताबें आपकी शायद हुई और बैत बहुत शायद हुई, तो इनसे हम सुनते हैं, जी भर के सुनाए। किताबें भी नहीं बिल्कुल जी किताबें हैं और सामने ही। आज तक मैं फिरोज भाई के हवाले से कोई अर्ज करता चलूं। आप इधर जरा बैठे, मुझे काम है। अच्छा, तो मैं अर्ज करता चलूं कि माशाल्लाह एक तवील अरसे से शेर व अदब की महफिलें सजा कर रहे हैं। आप जा रही हैं? अच्छा, सुनाना चाहिए। तो माशाल्लाह एक अरसे से शेर व अदब की महफिलें भी उन्होंने की, और जिस जमाने में हम अबू धाबी दुबई से आते थे तो ये बाहर से आने वाले शायरों में भी खास ख्याल रखते थे और दिलचस्पी लेते थे उन उमूर में, उन मामलात में कि दियार गैर में उर्दू के फरोग के हवाले से उर्दू ज़बान और अदब और दियार गैर में अदबी सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से भी। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो फिरोज नाज़िर खुसरो साहब जो हैं माशाल्लाह आप जानते हैं कि उनके वालिद साहब भी माशाल्लाह नामवर शायर से मुमताज़ शायर थे, और उस्ताद नाज़िर बताए, और फिरोज साहब हैं इनकी अदबी खिदमत हैं, इनको ये हमेशा सराहा जाएगा। साथ ही में चूँकि हमारे मेहमान दीगर ममालिक से भी आए हैं, जैसे रजिया साहबा हैं, उसर भाई हैं, हमारे तस्नीम बहन हैं और हमारी बहन गज़ल, तो ये लोग भी जहाँ भी हैं एक हकीकत है उर्दू की बस्तियाँ जो हैं इस तरह आबाद हुई हैं, और उर्दू की बस्तियों में जो बेमिसाल है जो काम ये कर रहे हैं इसको जितना सराहा जाए काम है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तस्वीर भाई और हमारी भाभी सबिया साहिबा। और जब इन्होंने बताया कि ये लोग आ रहे हैं और ये हमारे और सलीर साहब के बहुत करीब रहे हैं बहुत अरसे तक, और मेरा भी चाह रहा है कि मैं इनके इजाज़त में नशिस्त करूँ, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं भी जाती हूँ, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि इस नशिस्त की सदारत जो है वो मेरे हिस्से में आएगी। और मैं बहरहाल शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ से मेरे बहुत अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं। और आपने महफिलों का जिक्र किया तो अभी आप बात कर रहे थे कि सबिया और सगीर जाफरीन है, ये कैसी खुशनुमा महफिल से जाए, ये शेर आपकी नज़र है। और अगर इजाज़त दें तो मैं 2 नज़में और 2 गज़लें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अहबाब बैठे हैं, इनको पता है कि मेरी एक गज़ल भी बहुत तवील होती है, तो लेकिन मैं एक नज़्म पढ़ना चाह रहा हूँ पहले। ये 2 किताबें मेरी नज़मों की और 2 गज़लों की और एक शतात की, हमदात मकबत की, और ये जो है सलाम की। ये नज़्म है स्ट्रीट क्राइम्स की पस मंज़र। चलो बाजार चलते हैं, हाँ ना कहें इसलिए कि नज़्म सुन के आप कहेंगे नहीं। किसी की जेब से नकदी, किसी की जेब से नकदी, किसी के कान की बाली, किसी की जेब से नकदी, किसी के कान की बाली, किसी की चूड़ियां हाथों से महंगा कोई मोबाइल, किसी की जेब से नकदी, किसी के कान की बाली,
किसी की चूड़ियां हाथों से महंगा कोई मोबाइल, झलक टीटी की दिखलाकर जो माला टूट कर बिखरे तो मोती बीन लेते थे। जो माला हाथों से महंगा कोई मोबाइल, झलक टीटी की दिखलाकर जो माला टूट कर बिखरे तो मोती बीन देते थे। गरीबों की भी कुल पूंजी अभी कल तक यहाँ हम छीन लेते थे। गरीबों की भी कुल पूंजी अभी कल तक यहाँ हम छीन लेते थे। मगर अब लोग भी अपने बहुत होशियार बनते हैं। मगर अब लोग भी अपने बहुत होशियार बनते हैं। शिकस्ता ही सही फिर भी हमारी राह की दीवार बनते हैं। शिकस्ता ही सही फिर भी हमारी राह की दीवार बनते हैं। ना कानों में कोई बाली पहनता है, न हाथों में कड़े सोने के होते हैं। न कानों में कोई बाली पहनता है, न हाथों में कड़े सोने के होते हैं। दुल्हन के जो भी जेवर हैं वो मसनूई, जो मोबाइल हैं वो नकली। नुमाइश के सभी तौर तरीके खोखले, कुछ भी नहीं असली। नुमाइश के सभी तौर तरीके खोखले, कुछ भी नहीं असली। तो फिर बाजार जाकर क्या करें? तो फिर बाजार जाकर क्या करें? जेबें तो हैं खाली। चलो तो फिर बाजार जाकर क्या करें? जेबें तो हैं खाली। चलो कुछ ऐसा करते हैं, किसी के हाथ से थैला दवाओं का लपक कर छीन लेते हैं। चलो कुछ ऐसा करते हैं, ये भी देखें बड़ी दुख की बात है, किसी के हाथ से थैला दवाओं का लपक कर छीन लेते हैं। दवाएं भी तो महंगी हैं, कहीं पर बेच देते हैं। किसी के हाथ से थैला दवाओं का लपक कर छीन लेते हैं। दवाएं भी तो महंगी हैं, कहीं पर बेच देते हैं। कहीं पर बेच देते हैं या फिर घर को पलटते हैं। कहीं पर बेच देते हैं या फिर घर को पलटते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही जो हमने बालियां कानों से नोची थी वो मैंने तो फतन बख्शी थी दीदी को। कहीं पर बेच देते हैं या फिर घर को पलटते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही जो हमने बालियां कानों से नोची थी वो मैंने तो फतन बख्शी थी बीवी को, कड़े सोने की अम्मा को। तो फिर कुछ ऐसा करते हैं, कड़े अम्मा से जाकर छीन लाते हैं। कड़े अम्मा से चलो